ایک زمانے کی بات ہے جب دنیا میں انصاف کی قدر تھی اور صبر کو سب سے بڑی دولت سمجھا جاتا تھا۔ ایک شہر تھا جو دریا کے کنارے آباد تھا۔ اس شہر میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ حامد کے پاس نہ کوئی زمین تھی، نہ دکان، نہ کوئی سرمایہ۔ بس ایک کلہاڑی تھی جس سے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں بیچ کر اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں شکایت کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ حامد ہر صبح سویرے اٹھتا، نماز ادا کرتا، اپنی ماں کو سلام کرتا اور پھر جنگل کی طرف نکل جاتا۔ اس کی ماں اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اور دعا دیتی کہ اللہ اسے صبر کا پھل عطا فرمائے۔ حامد مسکرا کر کہتا کہ ماں، صبر ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ جنگل گھنا تھا اور راستے خطرناک، لیکن حامد کبھی نہیں تھکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محنت اور صبر سے ہی روزی ملتی ہے۔ ایک دن کی بات ہے جب حامد جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی اور دریا میں جا گری۔ دریا کا پانی گہرا تھا اور تیز بہہ رہا تھا۔ حامد نے فوراً پانی میں جھانکا، لیکن کلہاڑی دکھائی نہیں دی۔ وہ وہیں کنارے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ کلہاڑی ہی اس کی روزی کا واحدہ ذریعہ تھی۔ لیکن حامد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، تو ہی میری مدد فرما۔ جب وہ دعا کر رہا تھا، اچانک دریا کے پانی میں ایک عجیب روشنی چمکی۔ حامد نے حیرت سے دیکھا تو پانی میں سے ایک بزرگ شخصیت باہر نکلی۔ ان کی داڑھی سفید تھی اور لباس نورانی۔ وہ ہاتھ میں ایک سونے کی کلہاڑی پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیار سے حامد سے پوچھا، بیٹا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ حامد نے کلہاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ خالص سونے کی بنی تھی، جس کی قیمت شاید پورے شہر کی دولت کے برابر تھی۔ حامد کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ ہاں کہہ دے تو اس کی ساری غربت ختم ہو جائے۔ لیکن پھر اسے اپنی ماں کی تربیت یاد آئی، جس نے بچپن سے سکھایا تھا کہ سچائی اور دیانتداری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ حامد نے فوراً سر ہلا دیا اور عاجزی سے کہا، نہیں حضور، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ میری کلہاڑی تو لوہے کی تھی، پرانی اور زنگ آلود۔ بزرگ شخصیت نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اور پھر دوبارہ پانی میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر نمودار ہوئے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں چاندی کی بنی ہوئی ایک شاندار کلہاڑی تھی۔ وہ چمک رہی تھی جیسے ستارے۔ بزرگ نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ حامد نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ چاندی کی کلہاڑی بھی ایک خزانے کے برابر تھی، لیکن اس نے پھر سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، نہیں حضور، یہ بھی میری نہیں ہے۔ میری کلہاڑی سادہ، پرانی اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ بزرگ نے اس بار زیادہ دیر تک حامد کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرائے اور پھر سے پانی میں غائب ہو گئے۔ کچھ لمحات بعد وہ تیسری بار واپس آئے اور اس بار ان کے ہاتھ میں حامد کی اپنی پرانی لوہے کی کلہاڑی تھی۔ بزرگ نے پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ حامد کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی اور اس نے فوراً کہا، جی حضور، یہی میری کلہاڑی ہے۔ بزرگ شخصیت کے چہرے پر رضامندی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تمہاری سچائی اور دیانتداری نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ یہ تمہاری کلہاڑی لو، اور ساتھ ہی یہ سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی تمہارا صلاح ہیں۔ حامد نے حیرت سے پوچھا، لیکن حضور، میں نے تو صرف سچ بولا ہے، یہ اتنا بڑا انعام کیسے؟ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا، آج کل سچ بولنا سب سے مشکل کام ہو گیا ہے۔ لوگ معمولی فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن تم نے اتنی بڑی دولت کے سامنے بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ تمہارے صبر اور ایمان کا پھل ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ پانی میں غائب ہو گئے اور دریا پہلے کی طرح بہنے لگا۔ حامد اپنے انعام کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا دل شکر سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں اسے اپنی زندگی کے سارے مشکل دن یاد آئے۔ وہ رات جب انہوں نے بھوکے سو جانا پڑا، وہ سردیاں جب کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، لیکن کبھی اس کی ماں نے شکایت نہیں کی، بلکہ صبر کی تلقین کرتی رہی۔ آج حامد کو سمجھ آیا کہ صبر واقعی میں کتنی عظیم چیز ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ حامد نے سارا واقعہ سنایا اور تینوں کلہاڑیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اس نے کہا، بیٹا،
मैं जानती थी कि तुम्हारी नेकी और सच्चाई एक दिन जरूर रंग लाएगी। अल्लाह साबरीन को पसंद फरमाता है और उन्हें बेहिसाब रिज्क अता करता है। अगले दिन हामिद ने सोने और चांदी की कल्हाड़ियों में से एक को बेच दिया और इस रकम से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने एक दुकान किराए पर ली और इनाज का कारोबार शुरू कर दिया। वो ईमानदारी से तिजारत करता था, नाप तोल में कोई कमी नहीं करता था और गरीबों को कर्ज भी दे देता था। अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत दी और धीरे धीरे वो शहर का एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहर में एक और आदमी था जिसका नाम करीम था। करीम भी लकड़हारा था, लेकिन उसकी तबीयत में हिर्स और लालच था। जब उसने हामिद की कामयाबी की कहानी सुनी तो उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी ऐसा ही कोई इनाम पाए। करीम ने सोचा कि अगर वो भी दरिया में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दे तो शायद वही बुजुर्ग नमूदार हों और इसे भी सोने चांदी की कुल्हाड़ियां मिल जाएं। एक दिन करीम जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी दरिया में फेंक आया और वहीं किनारे पर बैठकर रोने लगा। इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि जैसे वाकई कोई बड़ा हादिसा हो गया हो। थोड़ी देर बाद पानी में से वही बुजुर्ग शख्सियत जाहिर हुए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? करीम ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है हुजूर। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, रकू मैं देखता हूं, और पानी में गायब हो गए। कुछ लम्हात बाद वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? करीम की आंखें चमक उठीं। उसने फौरन झूठ बोला और कहा, जी हुजूर, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बुजुर्ग शख्सियत का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है और तुम झूठ बोल रहे हो। करीम ने हिकलाते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं तो सच कह रहा हूं। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, बेटा, लालच और झूठ ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है। तुमने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और अब झूठ बोल रहे हो। जो इंसान लालच में आकर सच को छोड़ दे, वो हर चीज खो देता है। ये कहकर बुजुर्ग सोने की कुल्हाड़ी अपने साथ लेकर पानी में गायब हो गए और दोबारा कभी वापस नहीं आए। करीम वहीं किनारे पर बैठा रह गया। इसकी अपनी कुल्हाड़ी भी दरिया में डूब चुकी थी और अब उसके पास कुछ नहीं था। वो खाली हाथ वापस घर लौटा। लोगों ने जब ये वाकया सुना तो उन्होंने उसे समझाया कि लालच इंसान को तबाह कर देता है और झूठ कभी कामयाब नहीं हो सकता। करीम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हामिद जब भी ये वाकया सुनता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे सच्चाई की राह पर चलाया। इसकी माँ अक्सर कहती थी कि बेटा, दौलत और इज्जत सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र करते हैं और सच बोलते हैं। दुनिया में लोग फौरी फायदे के लिए गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी इत्मीनान नहीं पाते, जबकि साबर इंसान का दिल हमेशा सुकून से भरा रहता है। वक्त गुजरता गया और हामिद का कारोबार फलता फूलता रहा, लेकिन उसने कभी अपनी असल नहीं भूली। वो गरीबों की मदद करता, यतीमों को खाना खिलाता और मुसाफिरों को पनाह देता। लोग उसे मोहब्बत और इज्जत की नज़र से देखते थे। शहर के बुजुर्ग कहते थे कि हामिद जैसे लोग ही माशरे को जिंदा रखते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई और नेकी दूसरों के लिए मिशवल राह बन जाती है। एक दिन शहर में एक मुश्किल आन पड़ी। बारिश नहीं हुई थी और लोग कहत का शिकार हो गए थे। अनाज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और गरीब लोग भूखे मर रहे थे। इस हालत में बहुत से ताजरों ने इनाज को छिपा लिया और ज्यादा मुनाफे कमाने की कोशिश की। लेकिन हामिद ने अपने गोदाम खोल दिए और लोगों में मुनासिब कीमत पर इनाज तकसीम करना शुरू कर दिया। कुछ गरीबों को तो उसने मुफ्त में ही गल्ला दे दिया। लोगों ने हामिद से पूछा कि तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफे कमाने का मौका है। हामिद ने जवाब दिया कि मेरी दौलत अल्लाह की अता है और जो अल्लाह ने अता किया है वो इसी की राह में खर्च होना चाहिए। अगर मैंने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया तो मेरे पास जो कुछ है इसमें बरकत नहीं रहेगी। माल में बरकत उसी वक्त आती है जब उसे नेकी के कामों में खर्च किया जाए। जब कहत खत्म हुआ और बारिशें हुईं तो लोगों ने हामिद का शुक्रिया अदा किया। शहर के बादशाह ने भी हामिद की सखावत के बारे में सुना और उसे दरबार में बुलाया। बादशाह ने हामिद से कहा, तुम्हारी नेकी और फयाजी ने तुमको इस शहर का महसिन बना दिया है। मैं तुम्हें अपने खास ताजरों में शामिल करता हूं और ये फरमान जारी करता हूं कि तुम्हें रियासती तिजारत में खुसूसी मुराआत हासिल होंगी।
हामिद ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे दीन और ईमान ने मुझे सिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक उसूल अपनाया है कि सब्र, सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो लोग इन उसूलों पर चलते हैं, अल्लाह उनकी राहें आसान कर देता है। बादशाह ने हामिद की बातों से मुतासिर होकर उसे खुला तता की और कहा कि ऐसे लोग ही कौमों की तामीर करते हैं। हामिद अपने घर लौटा तो उसकी माँ ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, बेटा, याद है जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें कहानियां सुनाती थी। मैं बताती थी कि सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते, और आज तुम खुद एक मिसाल बन गए हो। हामिद ने अपनी माँ के कदमों में सर रख दिया और कहा, माँ, आपकी दुआओं और तरबियत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आपने मुझे सिखाया कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, मगर नेक नाम हमेशा बाकी रहता है। सालों बाद जब हामिद बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने बेटों को भी वही उसूल सिखाए, जो उसने अपनी ज़िंदगी में अपनाए थे। वो अक्सर उन्हें दरिया किनारे ले जाता और वही कहानी सुनाता जो उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। वो कहता कि बेटो, इस दुनिया में बहुत से लोग तेजी से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं और गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, सच्ची कामयाबी वो है जो सब्र, मेहनत और ईमानदारी से हासिल हो। हामिद के बेटों ने भी अपने वालिद की पैरवी की और वो भी शहर में अपनी नेकी और दियानतदारी के लिए मशहूर हुए। लोग कहते थे कि हामिद का घराना बरकत वाला है क्योंकि इसमें सच्चाई और तकवी है। शहर की नई नस्ल हामिद की कहानी सुनती और सबक लेती कि किस तरह एक गरीब लकड़हारे ने अपनी सच्चाई से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। एक दिन हामिद दरिया किनारे बैठा था और गुजरे वक्तों को याद कर रहा था। इसे वो दिन याद आया जब उसकी कल्हाड़ी पानी में गिरी थी और उसकी दुनिया अंधेरों में घिर गई थी। लेकिन उसने सब्र नहीं छोड़ा था और न ही सच्चाई का दामन। आज उसके पास दौलत थी, इज्जत थी और सबसे बढ़कर दिल का सुकून था। उसे एहसास हुआ कि वो सोने चांदी की कुल्हाड़ियां सिर्फ धात के टुकड़े नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी कि नेकी का बदला जरूर मिलता है। हामिद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि कितने लोग हैं जो छोटी छोटी मुश्किलात में हिम्मत हार देते हैं, हिर्स और लालच में पड़कर अपना ईमान बेच देते हैं। लेकिन जो लोग सब्र करते हैं, सच बोलते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। ये दुनिया इम्तिहान गाह है और हर इंसान को आजमाया जाता है, लेकिन असल कामयाबी उन्हीं का मकदर होती है जो इम्तिहान में सच्चे साबित हों। फिर हामिद अपने घर वापस चला गया। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कुछ गरीब थे जिन्होंने इससे मदद मांगी। हामिद ने खुशी से मदद की। कुछ लोग थे जो मशूरे के लिए आए। हामिद ने प्यार से उनकी बात सुनी और बेहतरीन मशूरा दिया। हर किसी के साथ इसका बर्ताव शाइस्ता और मोहब्बत भरा था। लोग कहते थे कि हामिद में एक खास नूर है, वो नूर जो नेक लोगों के चेहरे पर चमकता है। शाम हो गई थी और हामिद ने अपनी माँ के कदमों में बैठकर शाम की चाय पी। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो एक माँ को अपने बेटे की कामयाबी से मिलती है। इसने हामिद से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है। आज मैं अपनी आंखों से ये देख रही हूँ। हामिद ने अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा, माँ, आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। वो रात भी आई जब हामिद ने आखिरी सांस ली। उसकी मौत से पहले पूरा शहर इसकी बीमारी की खबर सुनकर परेशान था। लोग उसकी सेहत के लिए दुआएं कर रहे थे। जब उसने वफात पाई तो हजारों लोग उसके जनाजे में शरीक हुए। अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सब ने उसकी नमाज जनाजा में शिरकत की। लोग कहते थे कि हामिद ने सिर्फ दौलत नहीं छोड़ी, बल्कि एक रोशन मिसाल छोड़ी है जो नस्लों तक याद रहेगी। हामिद की कब्र पर लोग महीनों तक आते रहे और फातहा पढ़ते रहे। इसकी कब्र के पास एक दरख्त लगाया गया जिस पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, यहाँ एक ऐसा इंसान दफन है जिसने सब्र, सच्चाई और मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारी और दुनिया को दिखा दिया कि नेकी ही असल दौलत है। हामिद के बेटों ने अपने वालिद की याद में एक लंगर खाना खोल दिया जहाँ हर रोज गरीबों और मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता था। इस लंगर खाने के दरवाजे पर भी हामिद की वही कहानी लिखी गई जो इसकी जिंदगी का निचोड़ थी। हर वो शख्स जो वहां आता, वो कहानी पढ़ता और अपनी जिंदगी में इससे सबक लेता।
आज भी इस शहर में लोग हामिद की कहानी सुनाते हैं। जब कोई मायूस हो जाता है, जब किसी को लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं, तो उसे हामिद की मिसाल दी जाती है। लोग कहते हैं कि देखो, एक गरीब लकड़हारे ने किस तरह अपनी सच्चाई और सब्र से सब कुछ हासिल कर लिया। अगर हामिद ने हिम्मत नहीं हारी, तो तुम क्यों हार मान रहे हो? शहर के बाजार में एक बूढ़ा दरवीश आया करता था, जो नौजवानों को नसीहत करता था। वो अक्सर कहता था कि ए नौजवानों, दुनिया की चमक दमक तुम्हें बहका न दे। आजकल हर कोई जल्दी से अमीर बनना चाहता है, बगैर मेहनत के कामयाबी चाहता है। लेकिन याद रखो कि हकीकी कामयाबी सब्र और मेहनत से मिलती है। हामिद को याद करो, जिसने सोने की कल्हाड़ी के सामने भी झूठ नहीं बोला। अगर तुमने सच्चाई का रास्ता अख्तियार किया, तो दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब रहोगे। वक्त गुजरता रहा और नस्लें बदलती रहीं, लेकिन हामिद की कहानी हमेशा जिंदा रही। इस कहानी में एक ऐसा दरस था जो हर दौर में, हर माशरे में सही था और रहेगा। ये दरस ये था कि सब्र, सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और जो शख्स इन औसाफ को अपनाए, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। यहाँ तक कि जो नामुमकिन लगता है, वो भी मुमकिन हो जाता है। आज भी जब रात को वो दरिया चांद की रोशनी में चमकता है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ कभी एक नूरानी बुजुर्ग ज़ाहिर हुए थे, जिन्होंने एक सच्चे इंसान को इल्हाम दिया था। और जब हुआ की सरसराहट सुनाई देती है, तो ऐसे लगता है जैसे वो हुआ हामिद की कहानी सुना रही हो। वो कहानी जो हर दौर में लोगों को ये सिखाती है कि हकीकी खुशी और कामयाबी सिर्फ इन्हें नसीब होती है, जो सब्र करते हैं और सच्चाई पर कायम रहते हैं। दरिया अब भी बहता है, परिंदे अब भी गाते हैं, और लोग अब भी अपनी रोजी कमाने जंगल जाते हैं। लेकिन जब भी कोई इस दरिया के किनारे आता है, तो उसे हामिद की याद आ जाती है। वो इंसान जिसने दिखा दिया कि उसूल पर डटे रहना ही असल दौलत है। और यही वो सबक है जो इस कहानी ने दुनिया को दिया। एक ऐसा सबक जो कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई और सब्र की अहमियत हर जमाने में एक जैसी रहती है। हवा के झोंके अभी भी उस कदीम कहानी को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, और जो भी उसे सुनता है, इसके दिल में उम्मीद की एक करंट जाग उठती है। ये उम्मीद कि अगर हम भी हामिद की तरह सब्र और सच्चाई का रास्ता अख्तियार करें, तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है।